Yes. It is all about getting courage in life. Yes. Our emotional frequency, how we can change our emotional pattern this fast. आज का सेशन सबसे important और सबसे बेस्ट. This is one of my favorite sessions. ठीक है? If you Yes. understand it properly and if you apply it, इसमें भी कुछ practices होंगी, but only if you practice one or two, no, जो आपको पसंद है, जो आपके whatever you feel कि this is quite interesting, that will shift your emotional pattern like this. Okay. Okay. But we are learning and understanding everything from scratch, right? So from today, I just want this equation to be a part of your life. I am 100% responsible for my happiness, for my emotions, for my life. Just write it down if you want. Yes. 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 I am 100%, not 80%, not 90%, 99%. No. I am 100% responsible for my emotions, for Yes. happiness, for my life. Correct? Yes. And for that, सबसे पहले हमें एक चीज रियलाइज करनी होगी जाने अनजाने में. The whole day we keep on blaming, complaining, or making excuses. Yes or no? Yes. Yes. आज मतलब you will realize कि हम एक दिन को ऑब्जर्व करना. ये एक्सरसाइज भी मैं कुछ पहले मेरे पेड 1-on-1 स्टूडेंट्स को करवाती थी. you just need to maintain one jar, ग्लास का जार है, उसके ऊपर no complain, no blame, no excuse करके स्टिकर्स लगा दीजिए. Okay. And if you want to try it out, Yes. no compulsion. जब भी आपके मुंह से एक कंप्लेन निकले किसी के बारे में, like it can be anything, anyone, any condition, right? Complaining, blaming situation, या you are making excuses. नेहा एक्सरसाइज तो करनी थी but, right? तो एक पेबल उस जार में डाल देंगे. And after one whole week when you observe, you will realize कि बहुत सारी चीजें हैं जो वहां पे ही हमारी एनर्जी जाने अनजाने में हम ड्रेन कर रहे हैं. करेक्ट और नो? एनर्जी always flows in the direction where we give focus to. Yes. We are complaining, तो हम उसको एनर्जी दे रहे हैं. We are making it powerful, right? So from today, just remind yourself, I am responsible for my own happiness. No one else. See, no one can make you feel anything. They just exaggerate what is already there inside you. True or not? Yes. हम बोलते हैं कि इसने मुझे गुस्सा दिलवाया, इसने मुझे एंजाइटी फील करवाई, या due to him or her I am feeling like this. No, because that pain, that frustration, that anger is already within you, and वो एक ट्रिगर होता है, right? उन्होंने कुछ बोला और वो आपके अंदर जो भी था वो बाहर आया. That's it. Correct. So this is really very important to understand. We are responsible for our life situation, and this should be your life mantra. कुछ भी हो जाए, मैं भी खुद कभी कभी कर भी देती हूँ, ऐसा नहीं है मैं भी नहीं करती. But after complaining, I just realize कि what did I do? I don't want that, right? Whenever we are complaining, we are telling God that I want more of this kind of situation in my life, but we don't want that. So immediately I'll tell you like many tricks to follow. Immediately आपको क्या करना है हम डिस्कस करेंगे. ठीक है? Now write down this equation. E plus R equals to O. E plus R equals to O. Okay. Yes, where E is the event or situation, correct? Yes. O is the outcome. Okay. And R is whether you are reacting or responding to the situation. React or respond. Okay. Correct? Now, इसका क्या मीनिंग है? हमारी लाइफ में इवेंट सिचुएशन आर हैपनिंग विथ अस, राइट? होती है. उसका आउटकम कैसा आएगा, दैट इज सोली डिपेंडेंट ऑन वेदर यू आर रिएक्टिंग और रिस्पॉन्डिंग टू द सिचुएशन. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू? Reaction is impulsive, expression. Okay. Immediately, गर्मी लगी तो my God, we feel uncomfortable, right? Immediate. Responding is what? It's okay. Weather is hot. What I can do? I can, tie up my hair. I can do this. I can relax. I can do something for my body कि internal heat come हो, right? I'll think and then I will respond. So reaction is unintentional and response is reactional. Yes. Yeah, mostly responding is intentional or Yes. reacting is sometimes also it is like unintentional. मतलब हम किसी ने बोला और that triggered me in a negative way और मैंने उसको hurt करने के लिए फिर और चिल्लाया मे बी सामने. Okay. तो maybe it might be intentional because अब तक हमें ये equation नहीं पता था. Correct? So Yes. now while I know this, what I'll do now, I will first relax, calm my nervous system and then just take a pause of at least 30 seconds. Okay. अगर पॉज लेके रिस्पॉन्ड करो. अगर वो आपसे बेयर नहीं हो रहा है दैट सिचुएशन, कोई रूम में हो, तब यू जस्ट चेंज द रूम, यू जस्ट गो टू द वॉशरूम, डू डीप ब्रीदिंग, डू एनीथिंग, जस्ट फेक लाफली. हमने जो वो टाइम फॉर डबल हैप्पीनेस देखा था, राइट, लास्ट टाइम, कुछ नेगेटिव हुआ, इमीडिएटली जस्ट क्रिएट अनदर इमोशन. सो उस टाइम पे जैसे आप सिचुएशन को रिस्पॉन्ड करते हो, समझते हो, दैट विल क्रिएट अनदर पॉजिटिव वे फॉर यू. Getting it? Right? So E plus R equals to outcome is solely dependent on what we tell to ourselves and how do we respond to that situation or to that person. Okay. Yes? Yes. Okay. So बहुत सारे लोग, we are so comfortable living in that victim mindset. What is victim? Victimness मैंने वेबिनार में भी बहुत बार मेंशन करती हूँ. Everything is happening to me, right?
ये इसने मेरे साथ गलत किया, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरी ही लाइफ में हेल्थ चैलेंज आई, ये प्रॉब्लम मेरे साथ ही, और हम जाने अनजाने में गॉड को कंप्लेनिंग टोन में बोलते हैं, व्हाई मी गॉड, राइट? इन Yes. जस्ट नीड टू शिफ्ट वोकेबुलरी टू ट्राई मी गॉड, राइट? व्हाई मी गॉड की जगह ट्राई मी गॉड। चलो आपने ये चैलेंज दी, दैट मींस गॉड आल्सो फील्स दैट यू आर केपेबल ऑफ डीलिंग विद दिस सिचुएशन इन अ नाइस मैनर। तभी हमें ऐसी सिचुएशन, आई स्ट्रांगली बिलीव इन दिस, कभी कभी बहुत सारी चीजें एक साथ होने लगती है एंड वी फील कि वी आर नॉट एबल टू हैंडल इट, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू पुश थ्रू इट, बट इट इज फॉर अस, इट इज फॉर आवर अपलिफ्टमेंट, उसमें भी कुछ छिपा है दैट वी आर नॉट एबल टू सी दैट टाइम मे बी। Yeah, so just say try me God, I'm ready for the challenge, and just replace your vocabulary, वो ही बहुत सारी चीजों को ऐसे ही सॉल्व कर देगा। just replace the word problem with challenge। yeah, problem हम बोलते हैं ना, प्रॉब्लम है, डिफिकल्टी है, उसकी जगह पे चैलेंज, आई एम रेडी टू हैंडल दिस चैलेंज। I want to ask something. I want to ask something. yes yes please ask। That try me thing, is it not inviting more troubles? no way, not at all, see, it is not that we want difficult situation and we are challenging God ki give me more this kind of situation, no, whatever situation we are already having, उस टाइम पे हम अगर लो फील कर रहे हैं, अगर हम वी फील हेल्पलेस, दैट टाइम यू जस्ट नीड टू टेक चेंज योर पर्सपेक्टिव कि दिस इज अ काइंड ऑफ चैलेंज, इन माय पास्ट आई हैव ऑलरेडी ओवरकम मेनी चैलेंजेस लाइक दिस, और इससे भी ज्यादा बड़ी चीजें मैंने हैंडल की है, सो आई एम केपेबल एंड आई विल डील विद दिस इन अ ब्यूटीफुल मैनर, दैट्स इट। वी आर नॉट आस्किंग गॉड कि मुझे और चैलेंजेस दो और दो, नो, we are just addressing to that current challenge of ours in that manner, correct? yes, so now it is just one shift of mindset, that's it। एक चीज छोटी सी हम आपको डील करनी आ गई, देन यू विल बी एबल टू अप्लाई इट एवरीवेयर। हाउ यू डू एनीथिंग इज हाउ यू डू एवरीथिंग। अगर छोटी चीज में हमारा माइंड बिगड़ता है, वो ओसीडी है सपोज, राइट? ये पिलो यहाँ किसने रखा, ये इसने यहाँ पे क्यों किया, तो आप उसको, आपको ओसीडी है, आप एक चीज में सब देखते हो, यू विल फाइंड द सेम पैटर्न इन योर वर्क प्लेस ऑल्सो, राइट? इन योर किचन ऑल्सो, एंड देयर इज नो एंड हाउ वी कैन कंट्रोल अदर्स, देयर इज नो एंड। एक को इंप्रूव करोगे वो दूसरा रेडी होगा, we just need to focus on ourselves, और वो भी criticism मोड में नहीं, like for example if you are not able to follow that routine, it's okay, now what will I do, what जो past का time था वो चला गया, but now whatever I am going to do in my present, that will decide my future, that's it, and I am only focusing on my creating my beautiful future। Yes. yes, right। so now emotional habit, emotional frequency, ये frequency word मैं बहुत सारी बार use करूंगी throughout our sessions। frequency is made up of 4 things, our feelings, write it down, FTBA, feelings, F. F for feelings, Hmm. T for thoughts, Yes. B for beliefs, and A for actions, Yeah. right? Yes. Feeling, thoughts, beliefs, and actions as if I have already achieved that। My frequency is my feelings, my thoughts, my beliefs, and my actions as if I have already achieved my goal। That should be my frequency। वो advanced मतलब law of attraction की manifestation की advanced techniques है, that will we will be covering in our rest of the sessions। Okay. Okay? So now it is like emotional frequency is our emotional habits। Most of the time how do we feel, अब इसको measure करने का एक बहुत beautiful way है, but just understand that emotional habits might be situational habit, might be time based habit। suppose किसी को उठते ही बहुत कुछ overwhelming feel होता है, कोई लोग होते हैं जो उठते ही बहुत fresh होते हैं, positive होते हैं, करेक्ट? तो वो situation time based है। कोई some habits are people based habits, people based emotional habits। for example किसी को देखकर ही हमें गुस्सा आ जाता है किसी को देखकर ही चिड़चिड़ होती है, राइट? so that is people based habits। yes, Yes. now people, okay, first we'll do this exercise in your notepad, just write down on one side positive emotions और बीच में एक लाइन ड्रॉ करो, and on right side just write down negative emotions। right? Yes. list down all the positive emotions, and on the right side just write exactly opposite to that। for example happy, sad, Okay. calm, angry, maybe। जितने opposites आपको याद आते हैं, then I'll help you more, just note them down। joyful, unhappy, relaxed, erratic maybe, right? clarity, confusion, confident, worry, togetherness, lonely, abundance, lack,
रिस्पॉन्सिबल, गिल्टी, किसी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम नहीं लेते, फिर वी जस्ट फील गिल्टी. लेट मी नो व्हेन यू आर डन. As many emotions as you can write जो आपको डे टू डे लाइफ में फील होते हैं. जस्ट थिंक अबाउट योरसेल्फ. या डन. या नाउ this is a very powerful exercise. What time do you usually wake up? 6. 6 o'clock. Okay. तो लेफ्ट साइड पे आप स्लॉट बना दीजिए 6 AM टू 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12 ऐसे करके, जब जहां तक आप रात को मतलब जितने बजे सोते हो तब तक 2 hours के स्लॉट्स. Yes. एंड जस्ट कीप सम स्पेस. Yes. Yes. Okay. Now, in front of each slot, just think about your usual day. कोई कोई बार प्लस माइनस होता है, लेकिन वी आर नॉट एबल टू रियलाइज दिस until we do this exercise कि most of the time हमारा दिन सेम वे से शुरू होता है, सेम इमोशनल पैटर्न चलता है. तो आपको उस टाइम स्लॉट को के बारे में सोचना है. व्हेन यू वेक अप 6 से 8 के बीच में आपके माइंड में मोस्ट ऑफ द टाइम लाइक व्हिच काइंड ऑफ इमोशंस डू यू फील. मे बी फ्रेश, जो मेरे जो जैसे मॉर्निंग पर्सन है, दे फील फ्रेश, ऑप्टिमिस्टिक, लवफुल, ग्रेटफुल, बिकॉज आई डू अ लॉट ऑफ इनर वर्क उस टाइम स्लॉट में. तो आई फील सो होपफुल, फ्रेश, एनर्जेटिक, व्हाटएवर. फिर 8 to 10, 10 to 12 का स्लॉट यूजुअली होता है किचन चोर्स है, ये है, थोड़ा रशिंग वाला हो जाता है. तो इट इज आई फील अ लिटिल बिट ऑफ एंशियस. या किसी पर मतलब इफ माय हस्बैंड डोंट डू समथिंग लाइक मे बी उनका खुद का टॉवेल नहीं उन्होंने ठीक से रखा, ये नहीं किया, तो मैं थोड़ा गुस्सा भी हो जाती हूँ. सो अ लिटिल बिट एंग्री. बट मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट इमोशंस आई फील मेजॉरिटी. ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव का कॉम्बिनेशन होगा. वट एवर यू आर फीलिंग जस्ट राइट डाउन फ्रंट ऑफ ईच स्लॉट. आफ्टर लंच आई फील सो लेजी एंड अनप्रोडक्टिव. तो 1 to 3 का टाइम थोड़ा लेजी में जाता है, लेजीनेस में, राइट. आई डोंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग. फिर 3 to 5 अगेन रशिंग, या है काम, रिलैक्स्ड है, whatever is happening, just note it down. Yes. Done. Yes. Perfect. Now पॉजिटिव के नीचे अंडरलाइन कर दीजिए, नेगेटिव इमोशंस को एनसर्कल कर दीजिए. एंड देन जस्ट फाइंड आउट कि कितने पॉजिटिव इमोशंस हुए और कितने नेगेटिव. जस्ट वो नंबर को आपको मुझे बताना है. I think बराबर ही मैडम. 50-50%. Yes. Almost, right? Okay. So that is how we are operating our lives, right? And Yes. I'm glad कि आपका 50-50% आया at least. Most of my students has more negative emotions, right? And that is हाँ मेरा 50. yes, मेरा 50-50. correct. That is our driving our life, and these emotions are not related to our goal. आप ये ऑब्जर्व करोगे कि सेम इमोशनल पैटर्न आपका सालों से होगा, करेक्ट. क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस उसी तरह से ट्रेन हुआ है. हम जैसे आज उठे, जैसा फील किया, उस जिस रास्ते से ऑफिस गए, जिस रास्ते जो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, हमें लगता है एवरीथिंग एवरी डे इज डिफरेंट. नो, द सेम थिंग वी आर हमारे माइंड में हम सब सबकॉन्शियसली ऑटोमेटिकली सब कुछ करते हैं, और हमारा माइंड कहीं और होता है, हम कुछ और करते हैं, करेक्ट. सो नाउ whenever you will increase the ratio of your positive emotions, उसका result आपके thoughts change होंगे, your beliefs will slowly will get changed, and action, because it is changing your frequency. This is the first step to change your frequency.
Right? Now, see, what are the missing emotions? One thing you can do is you can list down, suppose love. Just check in your list. Love, gratitude, blessings, hopeful. वो सारे emotions कितने हैं? How, like, see, ultimately हमें यही चीजें चाहिए, right? Throughout our life, we only want to feel these emotions: happiness, satisfaction, love, gratitude, and purpose. Maybe, मतलब whatever we are doing, we are finding joy inside it. Yes or no? Correct. So these are the ultimate emotions. एक चीज आप कर सकते हो. This is also very like minute habit, but it is really so powerful. आप एक पेज पे बड़े बड़े बोल्ड मार्कर से ये सारे इमोशंस लिख दो, एंड देन जस्ट पेस्ट इट इन फ्रंट ऑफ योर वॉल, जहां से आप उठते हो, उठकर आपको जो वॉल दिखती है, इन योर बाथरूम मिरर, मे बी यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट इन योर मोबाइल, और उसको मतलब मोबाइल का वॉलपेपर बना दो. वॉट आप इन चीजों को चैट जीपीटी में डालोगे, एंड you can also write कि create beautiful image from these words. तो image के फॉर्म में भी आ सकता है, right? This is kind of vision board, and whatever you see most of the time will get absorbed by your subconscious mind. ऐसे ही दिन में कितनी बार अपने फोन को अनलॉक करते हैं, राइट? ऑन दैट टाइम यू आर जस्ट, इवन यू आर नॉट फोकसिंग इट कॉन्शियसली, बट आपका सबकॉन्शियस उसे ग्रैब कर रहा है, उसको एब्जॉर्ब कर रहा है, एंड दीज इमोशंस विल बी अ पार्ट ऑफ योर डे टू डे लाइफ. नाउ यू कैन ऑल्सो एक स्टेप फर्दर जाना. यू कैन, जब मॉर्निंग एक्टिविटीज कर रहे हो, मिरर में जाके प्रेस कर रहे हो, या मिरर एक्टिविटी मैं शायद नेक्स्ट टाइम बताऊंगी, उस टाइम पे भी उस इमोशंस को आप डीपली फील कर सकते हो. मेरी लाइफ में मैंने कब लाउड फील किया? इफ नॉट recently, I'll feel it today. Right now I'm loud. If I love myself, I'll accept myself the way I am. I don't need any kind of validation, approval from anyone. I'm just perfect the way I am. I feel so gratitude, so grateful, so blessed. Gratitude की exercise हम कर ही रहे, correct? I feel satisfied and peaceful no matter what. मैं आपको affirmations का एक पूरा सेशन दूंगी, वहां पे I'll help you to create your own affirmations. उसमें you can add this. This is like, for me it was life changing. I love my peace and my happiness more than anything else. I always choose my peace or satisfaction or happiness against winning an argument or being right. मतलब हमेशा ऐसा होता है ना कि एक कंफ्लिक्ट हो गया, और वो बोल रहा है वो सही है, हम बोल रहे हैं हम सही है, एंड इट कीप्स गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन. हमें पता भी है कि हम 90%, 99% वी आर ट्रू, देन ऑल्सो लिव इट. some we can't change some people, right? I want my peace more than winning an argument. You keep the award, चलो आप जीत गए, खुश रहो, right? But inside my heart I know I'm true, it's okay, correct? All right. So ये रेशियो को चेंज करने का बेस्ट वे, जस्ट कीप फीलिंग दोज इमोशन, और जब जब नजर जाएगी उन वर्ड्स पे, देन यू विल स्टार्ट टू फील दैट, करेक्ट? एंड नाउ ऑफ योर वेरी ब्यूटीफुल एक्सरसाइज, जस्ट ड्रॉ वन ट्रायंगल. Yes. ओके, ऑन द टॉप राइट P फर्स्ट, ऊपर ऊपर का जो कॉर्नर है P, देन F नीचे के कॉर्नर पे F, एंड देन लास्ट M, राइट? एंड इनसाइड द ट्रायंगल जस्ट राइट डाउन I am R डॉट H, मतलब शॉर्ट फॉर्म में लिखा है आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई ओन हैप्पीनेस. आप शॉर्ट फॉर्म अपने हिसाब से बना सकते हो. नाउ दिस इज द मास्टर अफर्मेशन. मैंने जैसे बताया, हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया, दिस विल यू जस्ट नीड टू कीप ऑन रिमाइंडिंग टू योरसेल्फ, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माय ओन हैप्पीनेस. अगर कोई मेरी बर्थडे पे याद नहीं कर रहा, कोई मुझे गिफ्ट नहीं दे रहा, कोई मुझे बुके नहीं दे रहा, कैन आई गिव इट टू माई सेल्फ? यस, ऑफ कोर्स, करेक्ट? बिकॉज आई एम रिस्पॉन्सिबल. जो चीज मुझे खुशी दे रही है, आई डू दैट. यस. नाउ we are going to change emotional pattern, but first step is, whenever you feel so negative inside your mind, and you feel like your energy is draining, उस टाइम पे एक तो याद रखना, that has become your pattern, and first way is to break that pattern. Okay, interrupt that pattern. अब interruption के लिए बहुत सारे ways है. एक तो I'll help you with this 3 ways, and second is you just need to create new emotional pattern. New emotional pattern create करने के लिए भी हमारे पास बहुत सारे ways है, and for that these 3 are the pillars. PFM हमने लिखा है, right? First is physiology or body language, you can say. Yes. Right? Now whenever we feel so drained from here, हमारे mind से हम low feel करते हैं, we don't feel that much excitement, happiness, or stress feel करते हैं, then just go for like look into your body. Yes. और उसका सबसे अच्छा वे है, you just need to change your physiology. से ऑब्जर्व करना है आपको कि जब भी आप लो फील कर रहे हो, ओके, टेल मी वन ऑफ योर इमोशनल पैटर्न जो आपको बॉदर करिए, उसको आप ओवरकम करना चाहते हैं. इमोशनल नेगेटिव इमोशन, वन ऑफ योर नेगेटिव इमोशंस और फील Helplessness. ओके. So whenever you will feel helplessness, I mean helpless, कि मेरे पास कुछ नहीं है, I don't know how to change this situation, I don't have that power, whatever, फिर thoughts चलते रहेंगे, right? That time just leave everything aside and just change your physiology. आप notice करोगे उस टाइम पे आप मे बी स्लाउच कर रहे हो, या बेड पे पड़े हो, या ऐसे ही ऐसे होंगे, लीन, आपके शोल्डर्स ऐसे होंगे. First thing, you just need to keep your spine straight. That is the first step. Shoulders straight, spine straight, and this is you can also try this power pose whenever possible. Stand straight,
and keep your hands like this. This is known as Okay. power pose. ठीक है? Chest straight, shoulder straight, chin up, and this power pose Okay. will itself give you a lot of courage. मतलब वो immediately आपकी energy को change. This is one way. Another way, just go for a walk. Walk or any kind of physical exercise or body को motion में लाना है. And last but not the least is my favorite way. सब कुछ बंद कर दो, room lock करो, music लगाओ, dance. Yes, this is going to be life changing. We will do it at the end, okay? Okay. That is the best sort of exercise and the best way to change your emotional pattern. Correct? क्योंकि हमारा माइंड हम यहीं पे घूमता रहता है, यहीं पे सोचते रहते हैं, ओवर थिंकिंग करते रहते हैं. वी फील अ लॉट ऑफ हेल्पलेसनेस. एक फीलिंग, एक थॉट आया, उसके रिगार्डिंग बहुत सारे हमारे माइंड है ना, इट RSI करके एक होता है, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम हमारे माइंड में, राइट? सो व्हेनेवर यू आर गिविंग दैट हिंट कि आई फील हेल्पलेस, तो आपका माइंड पास्ट में जाके जो भी आपकी एक्सपीरियंस है, मेमोरी है, वहां पे से ढूंढ के लाएगा जो सिचुएशंस में आप हेल्पलेस फील कर रहे थे. यस और नो? दैट टाइम आल्सो वो फीलिंग से जनरेट होगा. मे बी आपको मेमोरी में नहीं आएगा सब, लेकिन वो यू कैन फील इट फ्रॉम योर हार्ट. करेक्ट? बट नाउ वी आर, उसको हम रहने देते हैं. यू जस्ट कीप ऑन थिंकिंग. बट द मोमेंट वी चेंज अवर फिजियोलॉजी, कंप्लीटली उसकी एनर्जी वहां पे चली जाती है, राइट? सो इट विल गिव यू दैट हाइक, दैट इंस्टेंट इमोशनल चेंज. ठीक है? Yes. So you can change and music works best for that. सैड फील करो तो ऐसा नहीं फिर सैड सॉन्ग सुनेंगे हम और ऐसा डांस करेंगे, नो, राइट? बॉलीवुड का जिनचक म्यूजिक. व्हाट इज योर फेवरेट डांस सॉन्ग, बॉलीवुड सॉन्ग? Nothing in particular. Sorry? Nothing in particular. Why? It's, You have to have any choice, right? no, I don't have a choice. Come on, I know कुछ तो होगा पर्टिकुलर. एनी बॉलीवुड हीरो, हीरोइन, सॉन्ग, व्हाट डू यू लाइक द मोस्ट? चलो बताइए. I like the most to chill and just shut myself out from the world. Right. Okay. See, I think I need to do one more exercise with you. Maybe I'm not sure कि आपने अपनी लाइफ में अपने पेन को इतना नम किया है ना, that you are not able to express even what things give you joy. Yes or no? Yes, yes. Correct? तो आज का होमवर्क ये बाद में करना, ये हमने जो सेशन में हम डिसाइड कर रहे हैं ना. फर्स्ट ऑफ ऑल यू जस्ट नीड टू क्रिएट योर जॉय लिस्ट. दिस होमवर्क आई जस्ट वांट बिफोर टुनाइट. Yes. क्रिएट वन जॉय लिस्ट, द थिंग्स दैट रियली मेक यू हैप्पी. Okay. मैं मेरा जॉय लिस्ट आपको पढ़ के बताती हूँ तो आपको आइडिया आएगा. एंड Okay. दैट यू नीड टू डू डिलिजेंटली. ठीक है? Yes. आराम से टाइम लेकर बैठना है एंड देन लेट मी नो कि व्हाट आर द माइन्यूट थिंग्स दैट गिव यू deep happiness. Yes. Okay, just a minute. We are so busy fulfilling other people's dream, their emotion. We are taking care of them, but in that process, sometimes we feel for ourselves. We forgot how does joy look to ourselves. Yes, sir? I share something. Exactly. I'm scared of being happy. I'm scared. Yes. Why do you need to be scared here? Because I lost my chota bacha. I lost my dog. Dog, right? I'm scared, yes. It's okay. It happens. See, some things that are not in our control, that we just need to leave it to God. Yes. But whatever is in your hand, that you need to take responsibility for, right? So, okay, my joy list. Let me give you some random examples. कहाँ गया? Sorry. I do this very often. Acha. Yes. And okay, you can also write what do I want to be, do, or have in my life. So Okay. that will remind you कि वहां से भी joy मुझे मिल सकता है. Suppose I want to be a great life coach. ठीक है? मैंने एक टाइम पे ये लिखा था. Yes. So, वहां से भी मेरी खुशी आती है. The work that I'm doing is giving me satisfaction, confidence, and feeling loud. Correct? Yes. Yes. Joy list में आप simple चीजें भी लिख सकते हो. First, to get wet and dance in the rain. Yes. To do mehndi, as simple as that. I was very fond of doing mehndi one time, right, when I was in school. Yes. To have my body and hair spa, right? कब आपने खुद के लिए टाइम निकाला? And you said to yourself, no, I am going to do this no matter what. Everything, everyone else will get taken care of. हमें लगता है कि हमारे बिना ये दुनिया उल्टी हो जाएगी. No. Yes or no? Yes. Yes. Then long drive in rain with family. Listen or read motivational stuff. This gives me joy. To earn money on my own. That was like एक चीज मैंने लिखी थी 2-3 साल पहले, 3-4 साल पहले. And that is, I'm living that life of mine, right? पैसों की ऐसे कोई जरूरत नहीं घर पे. Everything is good, but I wanted to earn for myself. Correct? Visit or stay at cool natural place. I love nature. तो एक ऐसी नेचुरल जगह जहाँ पे man-made चीजें कम हो, right? And we get direct access to the nature. Artwork मेहंदी मैंने already लिखा है, right? So these are the small things. You just write down what are the things for you that can create happiness or joy in your life. Yes. उसके सामने ये भी लिखना कि वो चीज मैं कितनी कर रही हूँ इन माई करंट लाइफ. नॉट एवरी डे, आई एम नॉट टेलिंग एवरी डे पूरी लिस्ट करनी है. नो, एटलीस्ट वंस अ वीक वी कैन डू. करेक्ट? यस.
So ये joy list आपको करना है, right? Let's come back. P for physiology, right? Clear? Yes. Whenever you change your physiology, your emotions will directly, like immediately gets changed, and the whole cycle gets reversed. Correct? Thoughts, feelings, emotions, ये सारे interconnected है, और action भी. Thought, emotion, feeling के base पे ही हम action लेते हैं. And when I am taking action from that scarcity mindset, from that fearful mindset, it will only give me the result regarding that only. मुझे डर लग रहा है, मैं बहुत डर डर के जी रही हूँ, डर डर के स्टेप्स ले रही हूँ, तो धीरे 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 वही उसका इमोशंस का रिस्पॉन्स मुझे मिलेगा, बिकॉज गॉड विल नॉट गिव यू डायरेक्ट रिस्पॉन्स, इट विल यूनिवर्स वर्क्स दिस वे ओनली, वो हमारी फीलिंग्स और इमोशंस को ही रिस्पॉन्ड करता है. इफ आई एम फीलिंग स्कैर्ड, इफ आई एम फीलिंग कुछ गलत ना हो जाए, हर मोमेंट पे मुझे ये डर लगा रहता है, तो आई एम गिविंग दैट सिग्नल, और कुछ हुआ, और जैसे मैंने बताया आरएएस हमारे माइंड में एक्टिवेट होता है, आरएएस रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, इट विल फाइंड सम सिचुएशन, इट विल अट्रैक्ट सम पीपल, सम सिचुएशन इन सच अ वे दैट वो मेरे अंदर जो है फीलिंग वो बढ़ती जाएगी. आई एम नॉट demotivating you at all, but I'm just telling you the reality. And the good news is it is very easy to shift that pattern. First is physiology, second is F for feelings. Focus. F for focus. And that's what I was discussing. Wherever your attention goes, energy flows. Yes. Yes. Right? So you just need to consciously focus, change your focus to something good. अभी डर लग रहा है, अभी नेगेटिव थॉट्स माइंड में आ रहा है, अभी वो फीलिंग आ रही है, आई एम नॉट गुड इनफ, या पता नहीं मैं कैसे हैंडल कर पाऊंगी, वॉट एवर. फिजियोलॉजी चेंज की जहाँ पे वो भी पॉसिबल नहीं, यू कैन, अगर बैठे हैं ऑफिस में है, ऐसी वर्क प्लेस में जहाँ पे आप फिजियोलॉजी भी चेंज नहीं कर सकते, यू कैन ऑलवेज सिट स्ट्रेट, इतना तो हम कर ही सकते हैं, राइट? एंड वी कैन चेंज अवर फोकस. कुछ अच्छी टेड टॉक सुनी, TEDx या जोश स्किल्स प्लेटफॉर्म पे, कितनी मोटिवेशनल और कैसी स्टोरीज आती है, दे मेक अस रियलाइज कि हमारे प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है, लोग कहाँ से कहाँ पहुंचते हैं. ट्रू और Right. यस और नो? Yes. You can see some watch, read about some stories like that. Yes. Then always do something that will shift your energy. Gratitude is also very powerful tool. सुबह तो करते हैं, लेकिन सपोज आज मेरा किसी से झगड़ा हो गया, या मुझे लग रहा है कि आज मेरे बच्चों का एग्जाम है, ठीक है, मुझे लग रहा है कि क्या होगा, चिंता हो रही है, टेंशन हो रहा है कि करेंगे कि नहीं करेंगे. एंड सी, जैसे हमारे पॉजिटिव ब्लेसिंग्स प्रेयर्स वर्क करती है, उसी वे में हमारी जो सबकॉन्शियस फियर्स होते हैं वो भी वर्क करते हैं, वो एनर्जी हम लिटरली उसको पास ऑन करते हैं. उस टाइम पे मैं इमीडिएटली आई विल कैच माई सेल्फ कि नहीं, मुझे ये नहीं सोचना है, जस्ट आई विल गिव द ब्लेसिंग्स टू माई चाइल्ड. हेथवी हैज रेड अ लॉट, वो जानती है हाउ टू हैंडल एवरी क्वेश्चन, शी इज राइटिंग वेल, मतलब मुझे टाइमिंग भी नहीं पता किस टाइम पे होती है एग्जाम, बट स्कूल जाते हैं द मोमेंट मैं ऐसे वाइब्रेशन सेंड करती हूँ, दे आर डूइंग देयर बेस्ट अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी, दे विल रियली डू वेल इन देयर एग्जाम्स. करेक्ट? तो ये मेरा फोकस पॉजिटिव पर आ गया, और मैं पास्ट में जाके ऐसे एविडेंसेस ढूंढूंगी कि ओ माय गॉड, शी डिड रियली वेल इन दैट सब्जेक्ट आल्सो इन द पास्ट. करेक्ट? पास्ट में जाएंगे तो ऐसी स्टोरीज आपको मिलेगी ही मिलेगी, इफ यू विल ट्राई. करेक्ट? सो कॉन्शियसली यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन समथिंग गुड, समथिंग पॉजिटिव, समथिंग मोटिवेटिंग. यू कैन रीड बुक्स, बहुत सारे सोर्सेस है. अभी हम जितनी कंप्लेन और जितना वो करते हैं ना, उससे ज्यादा हमारे पास सोर्सेस है आज के टाइम पे इजीली अवेलेबल, राइट? मोबाइल पे जाके कुछ रील्स, फालतू में टाइम नहीं बिगड़ना है, बट ऐसी कुछ चीजें जो मैं सच में एब्जॉर्ब करना चाहती हूँ. वीके शिवानी को सुनो, 5-10 मिनट आपकी एनर्जी कंप्लीटली चेंज हो जाएगी. यू कैन ट्राई सम मेडिटेशन, गाइडेड मेडिटेशन. म्यूजिक भी बहुत अच्छे से वर्क करता है, जस्ट सूदिंग काम इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक. करेक्ट? सो व्हेनेवर यू विल फोकस ऑन समथिंग एल्स rather than what you are focusing on and on, तो वो भी आपकी इमोशनल फ्रीक्वेंसी को चेंज कर देगा. And last but not the least is the meaning. M for meaning. Okay? Okay. So life is all about the stories and the meaning we give to it. कोई भी सिचुएशन का, किसी भी चीज का पर्टिकुलर मीनिंग नहीं होता. The only meaning is what meaning we are giving to it. Getting it? Correct? बहुत रैंडम एग्जांपल देती हूँ. अगर आप रास्ते से जा रहे हो, आप और आपकी फ्रेंड जा रहे हैं, ठीक है, एंड आउट ऑफ नोवेयर एक डॉग आ गया और वो बार्क करने लगा, बहुत बड़ा डॉग था, बट यू लव डॉग्स, और आप उसको अच्छे से ट्रीट करे हो, या अच्छे से उसको मतलब देखा, यू गेव अ ग्लैंस और आप पास हो गए, आपके ऊपर कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं. बट आपकी फ्रेंड मे बी शी इज नॉट लाइकिंग डॉग्स, और उनको बहुत नफरत है कुत्ता से, एंड तो वो फिर उल्टा उसके शी माइट बी गिविंग सम एक्सक्यूजेस या ब्लेम समवन कि ऐसे किससे छोड़ देते हैं एंड दिस एंड दैट, ठीक है. तो उनके लिए मीनिंग क्या हुआ? दिस सिचुएशन वाज नॉट गुड, आई डोंट लाइक स्ट्रीट डॉग्स, या जो भी है, अगर किसी के भी है, दे शुड नॉट डू लाइक दिस एंड दिस. आपके लिए कुछ मीनिंग नहीं था. यस, तो सिचुएशन सेम है, बट हमारे सारे लोगों की इंटरप्रिटेशन डिफरेंट होते हैं. दैट इज बिकॉज द टेंडेंसी ऑफ आवरसेल्फ टू गिव मीनिंग टू ईच एंड एवरी इवेंट. मैं और एक चीज बहुत पावरफुल करवाऊंगी, बट नॉट टुडे, आज के लिए बहुत सारा हो गया. आई गिव वन फॉर्मूला, तो वो वहां पे आपको सीखने को मिलेगा हाउ वी कैन गिव एम्पावरिंग मीनिंग. एंड द मोर एम्पावरिंग मीनिंग वी आर गिविंग टू एनी सिचुएशन और एनी पर्सन, द मोर एम्पावरिंग वी गेट.
कंफ्यूजन है? Yes. यस, टेल मी। ये समझ में आया, लास्ट वाला समझ में आया। हाँ, ओके, मीनिंग चलो अभी मैं कोई एग्जांपल देती हूँ कि जिसको आप पावर देते हो ज्यादा वो हावी होता है आपके ऊपर। हाँ। जैसा आप- यस, सी मैं जैसा मीनिंग दूंगी, अगर सी आज बारिश हो गई, ठीक है, और बहुत हैवी रेन हुई और मेरा कुछ मैंने बाहर रखा था वो खराब हो गया, ठीक है, मैं ये मीनिंग दूंगी देयर आर मल्टीपल चॉइसेस, तो मैं ये भी सोच सकती हूँ, ओ माय गॉड, ये तो बारिश हुई, किसी ने मेरी हेल्प भी नहीं की, किसी ने और ने देखा भी नहीं और उसको उठाया भी, ठीक है, तो मैंने उस सिचुएशन को मीनिंग दिया कि दैट इज ड्यू टू सम अदर पीपल, कुछ खराब हुआ, मेरी चीज बिगड़ गई। अब मैं सिमिलर वे दूसरा मीनिंग भी दे सकती हूँ, इट वाज इन माय कंट्रोल आल्सो, नहीं कि मैंने भी जाकर एक बार चेक नहीं किया, मे बी नेक्स्ट टाइम आई विल बी मोर रिस्पॉन्सिबल, अब जो होना था वो हो गया, तो फिर वो बात मैंने वहीं पे खत्म कर दी, राइट, मैंने उसको ड्रैग नहीं किया। और फर्स्ट सिचुएशन में मैं उसको मे बी पूरे दिन तक भी ड्रैग कर सकती हूँ, यार इसकी वजह से ये हुआ, ये खराब हुआ, और वही फ्रस्ट्रेशन मेरी दूसरी हैबिट में, दूसरी पैटर्न में दिखेगा, Right. करेक्ट। सो आप जैसा फील करते हो अंदर से, उसके अकॉर्डिंग आप चीजों को, सिचुएशन को मीनिंग देते हो। एनी सिचुएशन हैज नो मीनिंग, अगर देना ही है तो पॉजिटिव मीनिंग क्यों ना दे, यस और नो। अगर किसी ने हम न्यूज बहुत सारे पढ़ते हैं, राइट, उसमें एस्ट्रोलॉजी का एक कॉलम होता है न्यूज़पेपर में, तो अगर उसमें प्रेडिक्शन ये है कि आपका आज का दिन अच्छा नहीं जाएगा, तो आपका माइंड, मे बी आप बहुत बिलीव करते हो, तो आप यही सोचोगे यार ये खराब होने वाला है, ठीक है, हम उसी माइंडसेट से जाएंगे, हमने मीनिंग ऑलरेडी दे दिया कि मेरा आज का दिन ठीक नहीं जाने वाला। फिर छोटी भी चीज कोई हुई रास्ते में, आपने शायद एक्सीडेंट भी देखा दूसरों का, तो आप बोलोगे हाँ देखो पेपर में था वो सच था, राइट। इंस्टेड यू जस्ट नीड टू रिवर्स इट। मैं क्या करती हूँ, मैं आई एम नॉट अगेंस्ट एनी एस्ट्रोलॉजी और समथिंग, बट मैं क्या करती हूँ, पॉजिटिव है ना तो उसको एज इट इज ले लेती हूँ कि आपका अच्छा, आज का दिन बहुत अच्छा जाएगा, नए नए लोगों से आप मिलोगे, एंड दिस यू विल गेन अ लॉट ऑफ प्रॉफिट, व्हाटएवर, आई विल टेक इट लिटरली, वाओ नेहा आज के दिन तो मजा आ जाने वाला है, राइट। एंड अगर वो नेगेटिव है, आई विल चैलेंज इट, आई विल चैलेंज इट, यस, मैं ऐसा कॉन्शियसली ट्राई करूंगी टू मेक इट ऑपोजिट, कि मेरा दिन बहुत अच्छा जा रहा है, मे बी मैं रास्ते से जा रही हूँ, एम्बुलेंस जा रही है, और मैं आई ब्लेस दैट पर्सन, दिस इज वन ऑफ आवर टाइनी हैबिट, मैं आपको शेयर करती हूँ, मैं और मेरे बच्चे हमेशा, कोई भी एम्बुलेंस जाती है तो वी जस्ट आंखें बंद करनी पॉसिबल, अगर मैं नहीं ड्राइव कर रही तो थोड़ी देर के लिए, एंड वी जस्ट ब्लेस दैट पर्सन कि हीलिंग एनर्जी उसको मिल रही, ये हैबिट हो गई, तो मैंने वो दिया। अब कुछ चीज खराब होने भी वाली थी, बट आई विल कॉन्शियसली मेक इट पॉजिटिव। फॉर एग्जाम्पल कुक नहीं आया, कुक ने मतलब ऑल ऑफ सडन बोल दिया कि आज मैं नहीं आऊंगा, और एंड टाइम पे बोला, देन ऑल्सो आई विल पॉज फॉर 1 सेकेंड, और एंड आई विल थिंक नहीं आज का दिन खराब नहीं होने वाला, क्या हुआ, तो वो नहीं आया, मैं आई कैन ऑल्सो कुक, मेरे पास अनलिमिटेड एनर्जी है, आई कैन कुक एंड एंजॉय इट, हाउ कैन आई मेक इट एंजॉयबल, सारे क्वेश्चंस ऐसे एम्पावरिंग क्वेश्चंस मैं पूछूंगी, तो वो मेरा दिन का मीनिंग पूरा उसने कन्वर्ट कर दिया। यस और नो गेटिंग? Yes. यस, तो कोई भी चीज है, कोई भी सिचुएशन है, जस्ट थिंक हाउ कैन आई मेक इट मोर पॉजिटिव, मोर जॉयफुल, मोर लवेबल, and your mind will get answer, give you answer, correct? So always remember this formula, PFM: change your physiology, change your focus, Yes. change the meaning you are giving to anyone or anything, with one strong belief, not to forget ever, I am responsible for my own happiness, I am responsible for my own emotions, my life, I am the creator of my life, not the victim of my life. एक सिचुएशन है, हम सालों से कंप्लेन करते जाते और वो चेंज नहीं हो रही, दैट इज आई हैव नॉट गिवन प्रॉपर एफर्ट टू चेंज इट। कुछ चीजें आई अंडरस्टैंड कि कुछ चीजें एक्सेप्ट करने वाली होती है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वी कैन चेंज द सिचुएशंस, राइट, एटलीस्ट हम, हमारे बस में जो भी है उसको तो 100% लेकर ट्राई कर सकते हैं, करेक्ट। अब एक बहुत क्यूट सा एग्जांपल देती हूँ, कॉमेडी। सपोज माय हस्बैंड, उनको स्नोरिंग की हैबिट है, राइट, ठीक है, बहुत बड़े बड़े जोर जोर से स्नोरिंग चलते हैं, सालों से ये हैबिट है। अब उनकी हैबिट चेंज करने के लिए मैंने ट्राई किया कुछ नुस्खे, कि ये पीने से, कोई ड्रिंक पीने से, मतलब कुछ डाल के अजवाइन जैसा पानी पीने से चेंज होता है, वो भी नहीं वर्क किया। ऐसे करके मतलब टर्न करके सोने से स्नोरिंग कम होता है, दैट आल्सो डिडंट वर्क। फिर कुछ और ट्राई किया, कोई चीज वर्क नहीं की। देन अगर मैं सालों से यही कंप्लेन को करती रहती हूँ, कोई चीज वर्क नहीं करी, दैट मींस आई नीड टू चेंज समथिंग फॉर माई सेल्फ, मे बी मैं अपने ऊपर एक और पिलो रख के सो जाऊंगी, यस और नो, मे बी आई कैन चेंज द रूम इफ पॉसिबल, करेक्ट। सो आई एम रिस्पॉन्सिबल, जब तक ये याद आएगा ना, तब तक हमें ब्लेम करना याद ही नहीं आएगा किसी और को, करेक्ट। Yes. Any question, any doubt, how you are feeling after this session? And मतलब कोई आपको कुछ शेयर करना है कि this was ultimate breakthrough for me, or kind of thing? No, I don't want to share. You're comfortable, right? You're Yes, I'm all right. yes. तो आज रात को आपको मैसेज करना है, नेहा, joy list done. Yes. Please try one thing from that list today, if you Yes. can. Deal? That is, Sorry? what did you say? The Yeah. only has to be created by the end of the night. Yeah. Joy list prepare करना है पूरा बैठकर. You need to message me, Neha, joy list is done. Yes. And from that list, do one activity today, if possible, whenever possible, at least for 10-15 minutes. Right, I will. Yes? Yes, All right. So I'll be waiting for your message. definitely.